السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ شہر میں غیر ضروری کیبل وائرز نکالنے محکمہ برقی کی خصوصی مہم۔ کئی مقامات پر انٹرنیٹ خدمات ہوئی متاثر، صارفین نے بغیر اطلاع کارروائی کو قرار دیا غیر ذمہ دارانہ۔ ریونت ریڈی کی تلگو دیشم جن سینا، YSR، BRS و مجلس سمیت دیگر اپوزیشن سے جسٹس B سدرشن ریڈی کی حمایت کی اپیل۔ کہا تلگو ریاستوں کے بھاجپا MP ضمیر کی آواز پر دے ووٹ۔ گنیش تہوار کے لیے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے، ریاستی وزیر پونم پربھاکر کی ہدایت۔ تمام محکمہ جات کے ساتھ اجلاس، 3 مراحل میں انتظامات تقسیم۔ سابق وزیر اعظم جانی راجیو گاندھی کی یوم پیدائش، CM ریونت ریڈی، ملو بھٹی سمیت کئی قائدین کا خراج۔ راجیو گاندھی کو بتایا ماڈرن ہندوستان کے بانی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں کمی، 22 کیرٹ سونا 91,800 روپے فی تولہ، جبکہ 24 کیرٹ 1,02,000 روپے فی تولہ درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں بجلی کے کھمبوں پر لٹکی ہوئی کیبلز ہٹانے کی مہم کے دوران انٹرنیٹ سروسز بری طرح متاثر ہوئیں، جس پر عوام اور ٹیلی کام اداروں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عوامی تحفظ کے لیے ضروری ہے، مگر صارفین نے بغیر اطلاع کارروائی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ شہر حیدرآباد میں حالیہ دنوں میں بجلی کے کھمبوں پر لٹکتی ہوئی ڈھیلی کیبلز اور وائرز کے باعث کئی المناک حادثات پیش آئے۔ صرف چند دنوں کے اندر 2 بڑے سانحات نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ 18 اگست کو رامنتا پور میں جنماشٹمی کے جلوس کے دوران رتھ ہائی ٹینشن تاروں سے ٹکرا گیا، جس میں 6 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے اگلے ہی روز بدلہ گڑھا میں گنیش وسرجن مورتی لے جانے کے دوران 2 افراد بجلی کے کرنٹ کی زد میں آ کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان واقعات کے بعد محکمہ برقی نے فوری حرکت میں آتے ہوئے شہر بھر میں ایک خصوصی مہم شروع کی، جس کے تحت برقی کھمبوں پر لٹکتے ہوئے کیبل وائرز کو بڑے پیمانے پر کاٹنا شروع کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر توانائی بھٹی وکرمارکا کی ہدایت پر کیا گیا، جنہوں نے ایک جائزہ اجلاس میں سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے کیبل آپریٹرز کو بار بار نوٹس دیے گئے، مگر انہوں نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ اب مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی اور عوامی تحفظ کے لیے ہر خطرناک کیبل کو فوری طور پر ہٹایا جانا ضروری ہے۔ تاہم اس اچانک مہم کے بعد شہر میں بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی۔ فائبر ٹو ہوم کنیکشنز سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جس سے دفاتر، کاروباری ادارے اور گھر سے کام کرنے والے ملازمین مشکلات کا شکار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ہزاروں صارفین نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت نے بغیر اطلاع کے انٹرنیٹ کیبلز کاٹ کر عوامی زندگی کو مفلوج کر دیا۔ ٹیلی کام کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم COAI نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ انٹرنیٹ کیبلز کا بجلی کی ترسیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن برقی عملہ اندھا دھن کیبلز کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں صارفین متاثر ہوئے۔ COAI کے ڈائریکٹر جنرل SP کوچھڑ نے کہا کہ انٹرنیٹ آج کے دور میں ایک بنیادی سہولت ہے، اسے اس طرح بند کرنا عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری جانب عوام نے سوشل میڈیا پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ بغیر اطلاع کے اس طرح کی کارروائی کیوں؟ ایک صارف نے طنز کرتے ہوئے لکھا، چند دن پہلے ہی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بارش اور ٹریفک کی وجہ سے IT ملازمین کو گھر سے کام کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اب حکومت نے خود ہی انٹرنیٹ کاٹ کر حالات مزید خراب کر دیے ہیں۔ کسی نے اسے تغلقی فیصلہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ کم از کم 2 دن پہلے اطلاع دی جاتی تاکہ لوگ اپنی تیاری کر لیتے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے بھی اس معاملے پر سخت تنقید کی ہے۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ کلیولس حکومت کی ایک اور مثال TGSPDCL نے بغیر اطلاع
इंटरनेट केबल्स काट डाले। लाखों सार्फिन मुतासिर, वर्क फ्रॉम होम तबाह, रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज। अगर वाकई मसला केबल्स में है तो इसी का कोई बाकायदा हल होना चाहिए था, मगर मौजूदा हुकूमत ऐसे हंगामी और गैर मुनज़्ज़म इक़दामात से आवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाल रही है। यूँ एक तरफ अवाम जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और महकमे बरक़ी इक़दामात कर रहे, लेकिन दूसरी जानिब अचानक और बेरब्त कार्रवाइयों ने ज़रूर सहूलियात यानी इंटरनेट खिदमात को शदीद मुतासिर कर दिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत अवामी सलामती और जदीद दौर की इस अहम ज़रूरत इंटरनेट के दरमियान तवाज़ुन किस तरह क़ायम करती है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, जनसेना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब में अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत करे। चीफ मिनिस्टर ने रियासती उजरा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सियासी जमातों से ये अपील की है। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को भी चाहिए कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर नायब सदर के इंतखाबात में वोट दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी तेलुगु रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। हर तेलुगु बोलने वाले शख्स की जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की तायीद करें। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ना कांग्रेस के लीडर हैं और ना ही किसी और जमात से इनका ताल्लुक है। तेलुगु रियासत से ताल्लुक की वजह से इनकी तायीद व हिमायत की जानी चाहिए और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसे तेलुगु बोलने वाले तमाम सियासी कायदीन को पूरी करनी चाहिए। सुदर्शन रेड्डी जी का नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन होने के बाद हम लोग सबसे दिल्ली से सुझाव लेंगे। इंडिया गठबंधन क्या करना चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन सुझाव लेके हम आगे रास्ता निकालेंगे। दक्षिण भारत से जो भी प्रतिनिधि बनने वाले वो इंडिया पक्ष में रहना है, क्योंकि आज दक्षिण भारत को विभाजन करने में भाषा पे और प्रांत के नाम पे जो विभाजन करने वाले उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम देश को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज आप चुनाव में देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड भी आप देखें तो महाराष्ट्र में 4 महीने में 1 करोड़ वोट जमा कर दिए। बिहार में अभी चुनाव है, कुछ कम 55 लाख वोट निकाल दिए। तो ऐसे समय पर जो संविधान को बचाने वाले हैं उनके साथ में जोड़ना है। ये नॉर्थ साउथ की मामला नहीं है, ये संविधान की मामला है। संविधान को आगे लेकर जाना है। इसीलिए हम लोग ये हमारा सबसे एक ही गुजारिश है, इंडिया गठबंधन बंगाल में है, दिल्ली में है, गुजरात में भी है, सब जगह में है। तो ये सवाल नॉर्थ और साउथ का नहीं है। ये सवाल ऐसे है कि संविधान बचाने वाले, संविधान को हटाने वाले के बीच में ये चुनाव है। नहीं, संविधान को हटाने वाले दोनों के बीच में ये चुनाव लड़ाई हो रहा है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का नाम डिक्लेयर नहीं हुए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनाउंस करने के बाद ये सब सारे हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्यों अभी इमरजेंसी प्रेस मीट लगाए, इसीलिए अभी वोट बहुत दूर है। अभी जो मदद दी है अभी तेलंगाना के लिए और तेलुगु के लिए एक प्राइड है, इसीलिए वो लोग फिर रीअसेसमेंट कर लेके वो उनका एसोसिएशन जहां पर भी हो, ये चुनाव नॉन पॉलिटिकल के वोटिंग के लिए हम मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, yes, I wanted to appreciate India Alliance. Why? Because they have given an opportunity to contest as a Vice President of India from Telangana. He is our pride. So I wanted to appreciate India Alliance. हुकूमत ने गणेश उत्सव तकारीब के दौरान मौसर इंतजामात करने की अहदेदारों और तमाम मुतालिका महकमेजात को हिदायत दी है। गणेश उत्सव के इंतजामात के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में मुनक़द हुआ। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी, गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारान और दूसरों ने भी इजलास में शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गणेश उत्सव के लिए मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। हर साल साबिक़ा से बेहतर इंतजामात हो रहे हैं। हुकूमत ने 3 मराहिल में इंतजामात को तकसीम किया है ताकि कोई मसला पेश न आए।
उन्होंने महकमा पुलिस को हिदायत दी है कि वो लाइन ऑर्डर की सूरत हाल पर नजर रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि त्योहारों के दौरान समाज के तमाम तबकात से ताउन लिया जाए। उन्होंने कहा कि इन इंतजामात के जरिए ब्रांड हैदराबाद को फरोग दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से सड़कों की हालत में जो खराबी हुई है इसे गणेश त्योहार से कबल बेहतर कर लिया जाएगा। उन्होंने वाटर वर्क्स, RNB, GHMC महकमा जात को भी मौसर इंतजामात की हिदायत दी। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स को भी सरकारी महकमों से ताउन का मशवरा दिया गया। హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి 46వ సామూహిక వినాయక ఉత్సవాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు నగర మేయర్ గారు రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి అధికారులందరితోటి సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం పక్షాన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజల సహకారం, నిర్వాహకుల సహకారం అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్య వర్షాల వల్ల ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు జరిగి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, కొన్ని ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అటువంటిది జరగకుండా విద్యుత్ శాఖ సూచనలు కావచ్చు, పోలీస్ శాఖ వారి యొక్క సహకారం తీసుకొని GHMC పూర్తి స్థాయిలో ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసింది. కాబట్టి భక్తులు కానీ నిర్వాహకులు కానీ ప్రజలు సహకరించండి. ఈ గణేష్ ఉత్సవము హైదరాబాద్ శోభను పెంచే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో దేశమంతా కూడా ఆకర్షింపే విధంగా నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం ఉచిత విద్యుత్తును కూడా మండపాలకు ఇస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరాన్ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలుగజేయడానికి నిధులకు ఎటువంటి కొరత లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంది. కానీ ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు, అదేవిధంగా భక్తులు, మంటపాల నిర్వాహకులు, ముఖ్యంగా విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న వాళ్ళంతా కొన్ని ప్రభుత్వ సూచనలు, అవి ఆదేశాలుగా భావించకుండా కొంత సూచనలను తీసుకున్నట్టయితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ధార్మికత్వము, అదేవిధంగా ఒక భక్తికి సంబంధించినప్పుడు మనం ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగజేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి ఆ దిశలో అందరూ సహకరించమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కోరుతా ఉన్నాం. సార్, ఈ మధ్యకాలంలో ఇది జరగద్దు, మంచిది, మనం భక్తి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగదని ఇప్పుడే విశ్వ హిందూ పరిషత్ తరఫున వాళ్ళు కూడా కోరుతా ఉన్నారు. నిర్వాహకులకు వాళ్ళ పక్షాన కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి, అదేవిధంగా ఆగమానికి సంబంధించి కావచ్చు, నిమజ్జనానికి సంబంధించి కావచ్చు, మళ్ళీ 9 రోజుల పూజకు సంబంధించి 3 ప్రక్రియలలో భక్తి, పారవశ్యము, పూజ, పునస్కారం ఉండాలి తప్ప ఇతరులకు అసౌకర్యము, ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఉండొద్దని భాగ్యనగర్ సమితి వాళ్ళు స్పష్టంగా వాళ్ళే కొన్ని సూచనలు కోరినారు మీ ముందే. అదేవిధంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ కావచ్చు, భాగ్యనగర్, బాలానగర్, ఖైరతాబాద్ అన్ని నిర్వాహకులు కూడా వాళ్ళ ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన వాళ్ళకే ఉంది. కాబట్టి నిర్వాహకులకు వాళ్ళు తప్పకుండా తగిన సూచనలు, సలహాలు చెప్తారని ఆకాంక్షిస్తాం. साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की सुपुर्दी के साथ रियासती असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवारों की उम्र की हद 25 बरस से घटाकर 21 बरस करने की कोशिश की जाएगी ताकि नौजवानों को ज़्यादा मौक़े मिल सके। राजीव गांधी जयंती के मौके पर सेक्रेटेरिएट के रूबरू इनके मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि राजीव गांधी ने ही वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 बरस की थी। ख़वातीन को मुकामी इदारों में रिजर्वेशन दिया और मुल्क में टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर व टेलीकॉम असलाहात मुतारफ करवाएं, जिससे आज हैदराबाद IT हब बन पाया। उन्होंने कहा कि इस जज्बे के साथ हुकूमत हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने की सिमत काम कर रही है। इस मौके पर उज़रा, अवामी नुमाइंदे और दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में आंजहानी राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पर पहुंचकर गुलाए अक़ीदत पेश किए और इनकी खिदमत को याद किया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव गांधी एक दूरअंदेश लीडर थे जिन्होंने मॉडर्न और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था और इसको पूरा करने के लिए अमली इक़दाम भी किए थे। राजीव गांधी ने ही मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी थी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम का आगाज़ किया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इनकी कुर्बानी आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बनी रहेगी।
वरंगल MGM हॉस्पिटल जंक्शन पर साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा, साबिक MLC P पद्मावती समेत कांग्रेस कायदी ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में जो टेक्नोलॉजी से हम दूसरे ममालिक से मुकाबला कर रहे हैं वो साबिक वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की बदौलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरों को इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने सफ़ों में इत्तेहाद के साथ इनके अज़ाइम को हासिल करने में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम में रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा, साबिक MLC P पद्मावती, P भास्कर व दीगर पार्टी लीडरों ने शिरकत की और राजीव गांधी के मुजस्समे पर चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। మాజీ ప్రధానమంత్రి స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి MGM సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి వారి విగ్రహానికి పూలమాల ఆవిష్కరించి మరి వారిని గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది। మరి రాజీవ్ గాంధీ గారు తన తల్లి మరణించిన తర్వాత మరి అనుకోకుండా ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది। పైలట్గా ఉన్నటువంటి అతను మరి ఇందిరాగాంధీ గారి మర్డర్ అయిన వెంటనే ఆయనను ప్రధానమంత్రిగా మరి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మరి ఆయన ఒక మంచి ప్రధానిగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం జరిగింది। మనకు టెక్నాలజీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి, ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి, కంప్యూటర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి మన ఇండియాను ముందంజలో పెట్టినటువంటి వ్యక్తి రాజీవ్ గాంధీ గారు। ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజును సద్భావన దివస్గా దేశమంతటా కూడా జరుపుకుంటారు। మరి ఆయన ఎన్నో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడము, తల్లి బాటలో తను కూడా నడుస్తూ మరి నిరుపేదల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా వారు పరిపాలన అందించారు। మరి వారి కూడా తల్లిలాగానే ప్రజలకు పాలనను అందిస్తూ ప్రజాసేవలోనే తన యొక్క మరి జీవితాన్ని కూడా మరి అర్పించడం జరిగింది। రాజీవ్ గాంధీ గారి మరణం ఏ విధంగా జరిగిందో మనందరికీ కూడా తెలుసు। మరి అయినా కూడా ఈరోజు ఆ గాంధీ ఫ్యామిలీ आनजानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जयंती के मौके पर मधोल के साबिक रुकन असम्बली G विट्ठल रेड्डी ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लाहात की बुनियाद रखने वाले और हिंदुस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने का सेहरा राजीव गांधी के सर जाता है। उन्होंने नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेने का मौका देते हुए वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करना एक तारीखी फैसला करार दिया। आज मुल्क मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहा है तो ये राजीव गांधी की ही दूर अंदेशी और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की पॉलिसी का नतीजा है। इस मौके पर AMC वाइस चेयरमैन MD फारूक अहमद, अफरोज़ खान, राजना, साबिर, राजेश्वर, खालिद खान समेत कई कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। साबिक वजीर व BRS रुकन असम्बली T हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इसने यूरिया की किल्लत के जरिए किसानों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। उन्होंने इंतबा दिया कि तेलंगाना में यूरिया की किल्लत की वजह से ज़राई बहरान की कैफियत पैदा हो रही है। हरीश राव ने दावा किया कि तेलंगाना में BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में किसान इज्जत व विखार की जिंदगी गुजार रहे थे। आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान यूरिया के लिए अहदेदारों के पैरों पर गिरने को मजबूर कर दिए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें दिखाया गया कि किसान यूरिया के लिए अहदेदारों के पैर छू रहा है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि किसानों को तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर कर दिया गया है। शदीद बारिश में भी वो घंटों इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का शिकार कर दिया है और इनकी सहूलत के लिए कुछ नहीं कर रही है। संगारेड्डी में साफ व शफाफ मंजीरा पानी की सरबराही पर तेलंगाना कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने राजमन पेट फिल्टर बेड का मुआयना करते हुए अहदेदारों से कहा कि 2010 में स्कीम शुरू होने पर एक साथ 10 टैंक भरते थे और 1.5 घंटे तक पानी सप्लाई होता था, मगर अब अवाम को वो सहूलत नहीं मिल रही है। अहदेदारों ने वजाहत की है कि रियासत की तकसीम के बाद मिशन भागीरथा के तहत नई लाइनें बिछाई गई हैं, लेकिन वो नाकिस मियार की हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ है। अवाम ने भी शिकायत की कि फिल्टर बेड में पुराना तरीका इस्तेमाल हो रहा है और माहौल गैर सेहत बख्श है।
जग्गा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि पहले की तरह ही पानी सप्लाई का इंतजाम किया जाए। इसके लिए मंसूबा और बजट तैयार करें और फिल्टर बेड की तोसी के लिए मजीद जमीन खरीदने पर गौर करें। साथ ही कहा कि अगर म्युनिसिपैलिटी ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो फिल्टर बेड का इंतजाम प्राइवेट एजेंसी के सुपुर्द किया जाए। నేను 10 ఏళ్ళు ఫీల్డ్లో లేను. సామాజిక రాష్ట్రం వచ్చినాక ఒక టర్మ్ ఎమ్మెల్యే లేను, ఒక టర్మ్ గెలిచినాం, కానీ ఆ 2-3 ఏళ్ళ కరోనాకే వీకింది అంతే కదా. అయినా గవర్నమెంట్ కూడా లేదు, నేను వచ్చి వీకేది కూడా ఏం లేకుండా అప్పుడు వచ్చి అర్థమైంది కదా. ఆ 10 ఏళ్ళు ఆ ప్రభుత్వం ఉండే ఆ మిషన్ భద్రత తెచ్చిరు, సత్యనాథ్ పట్టించారు, సంగారెడ్డి స్కీమ్ అంతా ఖరాబ్ చేసి పట్టించారు. అర్థమైందా? నేనేమంటున్నంటే ఇది ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఇది మీరు చేయగలుగుతారా, ఈయన అన్నట్టు ఈయన మీరు చేయగలుగుతారా, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి నడిపిస్తారా ఈ సిస్టమ్ అంతా? జైలు నీకు బీపీ ఉందని లేదు కదా, దానికి టార్చర్ ఉంటుంది, అటు ఇటు ఉండదు. విన్నావా? ఇంట్లో వస్తుంది నీకు. ఇక నేను అర్ధరాత్రి వస్తే ఇక అడుగు వీళ్ళని, అర్థమైందా? నా 3 గంటలకు వచ్చి చూస్తే ఇవ్వని అయ్యకి చెప్పా, నువ్వు 3 గంటలకు నేను లేపుతా. నువ్వేదో ఇట్లా అందరు లీడర్లు అన్నీ మాట్లాడక ముందు నువ్వు కూడా మీ ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, ఇంకా మీరు ఇద్దరు కమిషనర్ చిన్న పిల్లలు, ఇంకా మీరు పండుగలప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది, పండుగలప్పుడు ఆఫీసర్లు విన్నావా? 2 రోజుల ముందు అలర్ట్ చేస్తా వీళ్ళని. తేడా వచ్చిందంటే 4 గంటలకు 3 గంటలకు లేపుతా. ఏదో అందరూ ఏదో చెప్తారు, ఇంట్లో వంటారు కాదు నా టైపు. నేను ఇట్లా అర్ధరాత్రి లింక్ ఏది పబ్లిక్ తెలియదు, మళ్ళా ప్రజలకు తెలియదు ఇది. तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक तहरीक शिद्दत इख्तियार करने लगी है। गुज़िश्ता दिनों रंगारेड्डी जिले के अमंगल में इस तहरीक की तायद में बंद का ऐलान किया गया था। अब तलबा बरादरी भी इस तहरीक में कूद पड़ी है। उस्मानिया JSC की जानिब से मारवाड़ी गो बैक तहरीक की तायद की गई है और 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी JSC के सदरनशीन के तिरुपति रेड्डी ने इस बंद का ऐलान किया और आवाम से अपील की कि वो पुरअमन तौर पर इस बंद में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजरीन तेलंगाना के ताजरों की जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं और धोखाधड़ी के तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत मारवाड़ी ताजरों का जुल्म बंद करने में नाकाम हुई हो तो ये मुजाहरे एक बड़े एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मारवाड़ी तेलंगाना को लूट रहे हैं। पहले AP की अवाम ने लूटा और अब मारवाड़ी तबका तेलंगाना को लूट रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बंद की मुख्तलिफ तंजीमों की तायद भी हासिल हो रही है और अवाम को पुरअमन तौर पर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ఈ దాడి గురించి మరి మార్వాడీలు చేస్తున్న ఈ అరాచకాలు యావత్తు తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. దీని మీద తక్షణమే ప్రభుత్వం చర్య తీసుకొని వాళ్ళకు తగిన శిక్ష చేయాలి. లేదంటే మాత్రం ఇంతటితో ఆగదు, చాలా ఉవ్వెత్తున మొత్తం ఉద్యమం రేగుతుంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మోండా మార్కెట్లో ఒక దళితుడి పైన మార్వాడి దాడిని ఖండిస్తూ ఓఈజేస్గా మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఒక సాయి కుమార్ అనే క్యాండిడేట్ పైన నడి రోడ్డు మీద వెహికల్ ఆపి ఇంతసేపు ఆపినందుకు SK జ్యువెల్లర్ అలా యాజమాన్యం అలా అనుచరులు కలిసి దారుణంగా కొట్టడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్వాడీలు ఆధిపత్యం ఉందని తెలుస్తుంది. తెలంగాణకు ఆంధ్రోలు దోపిడీ చేస్తున్నారని మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 1200 విద్యార్థులు చనిపోవడం జరిగింది. ఎంతోమంది అమరవీరులు జరిగారు. ఎంతో విద్యార్థుల కేసులు కూడా జరిగినాయి. ఇలాంటి తెచ్చుకున్న తెలంగాణను తెలంగాణ తెచ్చుకున్న ఫలాలు SC ST BC మైనారిటీ తెలంగాణ ఉన్న ప్రాంతం వాళ్ళకే మనము రావాలని మేము చేస్తున్నాము. తెలంగాణ వచ్చింది. ఈ వచ్చిన తెలంగాణలో మార్వాడీలు బిజినెస్లలో 90% మార్వాడీలే ఉన్నారు. మార్వాడీలు కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, మరియు మార్వాड़ी संबंधिंచిన వాళ్ళే బిజినెస్ లో ఉన్నారు. हैदराबाद में सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा गया। कीमतों में मामूली कमी देखी गई। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 91,800 रुपये दर्ज की गई है और इसमें फी तोला 550 रुपये की कमी दर्ज की गई है। इस तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी
फी तोला 600 रुपये की कमी देखी गई है। शहर में अब 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 1,02,000 रुपये दर्ज की गई है। इस तरह चांदी की कीमत फी किलोग्राम 1,20,000 रुपये दर्ज की गई है। जुबली हिल्स असेंबली हलके के एरागड्डा डिवीजन के नेताजी नगर में बारिश के पानी ने आवाम को सख्त मुश्किलात से दो चार कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के बायस मुतअद्दिद घरों में पानी दाखिल हो गया था, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता शब तकरीबन 11:30 बजे JHMC हैदराबाद का अमला नेताजी नगर पहुंचा और घरों में जमा पानी को निकालने का काम अंजाम दिया। इस मौके पर बस्ती सदर सैयद नईम और दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने मुतासरा खानदानों की भरपूर मदद की और इन्हें फौरी सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। आदिलाबाद जिले में मुसलसल बारिश ने आवामी जिंदगी मफलूज कर दी। शांति नगर और सोनार कॉलोनी में घरों में पानी दाखिल होने से अनाज व सामान जाया और मकीन बीमारियों के खदशात से दो चार हैं। आवाम और किसानों ने फौरी रिलीफ और मुस्तकिल हल का मुतालबा किया, जबकि वजीर जुबली कृष्णा राव ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके ताउन की यकीन दहानी करवाई। आदिलाबाद ज़िले में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने अवामी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। पीर के रोज़ ज़िले मुस्तक़र के वार्ड नंबर 33 शांति नगर में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे मकानात के अंदर मौजूद अनाज, बिस्तर और घरेलू सामान ज़ाया हो गया। मुकामी अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि एरोड्राम के करीब से आने वाला पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुई है। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी रिलीफ पैकेज और मुस्तक़बिल हल फराहम करने की अपील की। एक समंदर के वैसा बन गया है ये पूरा महिला, और हम जो है सो परेशान हालत में है। कोई गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है, सब मजदूर पेशा आदमी है यहाँ पर, कोई नौकरी वाले नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख लीजिए आप, पूरा घर गिर गया। ये पूरे अब कार है ना, ये किराए से भी नहीं रह सकते और किराया दे भी नहीं सकते। ये देखिए, और एक घर भी सैंक्शन नहीं कर रहे साहब, और जिसको घर आए उसको घर दे रहे साहब, डबल घर दे रहे। ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా పేదవాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళందరికీ తగిన న్యాయం చేయాలి సార్. ఎందుకంటే మీరు వాస్తవంగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఆ 3 నెలల రేషన్ ఇచ్చినా కూడా అలా రేషన్ కూడా నిజంగానే వృధా అయిపోయినట్టు. ఎందుకంటే సార్ వీళ్ళు కూలి పని చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు సార్, ఆ రేషన్ మొత్తం తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మొత్తం నడుమంటి వరకు వాటర్ చేరి నీళ్లు చేరి ఆ రేషన్లు ఉప్పులు నూనెలు కారం పొడులు అన్నీ కూడా మొత్తం వాటర్లో కలిసిపోవడం జరిగింది సార్. मसला है, घरा में पानी घुस जा रहा, पूरे राशना ये हो जा रहे, बीमार हो जा रहे बच्चे छोटे छोटे। कब तक हम ऐसा करना? हर बारिश में पानी आता आपको? हर बारिश में यही धंधा है। कौन है यहाँ के काउंसलर? कौन थे यहाँ के काउंसलर? अजय अन्ना है, अजय अन्ना। इस दौरान आदिलाबाद और महाराष्ट्र की सरहद पर भी बारिश की वजह से संगीन मुश्किलात पैदा हुई। शंकरगुड़ा चेक पोस्ट के करीब गुज़िश्ता कई दिनों से भारी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में आपसानाला के पास सैकड़ों लॉरियों की लंबी कतारें लग गई। लॉरी ड्राइवर्स खाने पीने की बुनियादी सहूलियात ना मिलने पर सख्त मुश्किलात झेल रहे हैं और करीबी देहात से अशियाए ज़रूरत खरीदने पर मजबूर है। ड्राइवरों ने मुतालबा किया कि बारिश में कमी आते ही जुज़वी तौर पर ट्रैफिक की इजाज़त दी जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो। बेलामंडल के बैन गंगा नदी के किनारे वाक़े कई देहातों जैसे सांगड़ी, भेदुड़ा और मांगोड़ में बारिश का सैलाबी पानी दाखिल होकर हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। किसानों ने बताया कि कपास और सोया जैसी फसलों पर फ़ी एकड़ 20 से 30 हज़ार रुपये लागत आ चुकी थी, मगर अब तकरीबन 2 से 3 हज़ार एकड़ अराजी की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। साबिक़ ZPTC रामदास नाके ने मुतासिरा खेतों का दौरा करते हुए किसानों को दिलासा दिया और कहा कि वो इस मसले को हुकूमत के सामने पेश करके मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे।
دوسری جانب وارڈ نمبر 32 سونار کالونی کی عوام بھی سخت مشکلات میں مبتلا ہے۔ اس علاقے میں نکاسی آب کا معقول انتظام نہ ہونے کے سبب گھروں کے اطراف بارش کا پانی جمع ہو کر ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے۔ خواتین نے میڈیا کے سامنے شکوہ کیا کہ کئی بار حکام کو مطالعہ کرنے کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں کیا گیا۔ گندے پانی کے ٹھہراؤ کی وجہ سے مچھروں کی افزائش بڑھ گئی، جس سے ڈینگیو اور ملیریا کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ عوام نے ضلع انتظامیہ اور میونسپل حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر پکی سڑکوں کی تعمیر اور نکاسی آب کے بہتر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ بارش کا پانی، ہمارے گھروں کا پانی پورا جمع ہو جا رہا ہے، یہاں پہ ڈینگو مچھر وہ سب پنپ رہے، یہاں کیڑے مکوڑے بھر جا رہے، جانے کا راستہ نہیں ہے ہمارے کو۔ انہوں موٹیشن ہو گیا، سب ہو گیا، ہونے کے بعد آ کے ہم یہ ایریا کے کاؤنسلر ہے بول کے آ کے بعد میں آ کے 10,000 روپے لے گئے، یہ ہمارا حق ہے، پھر یہ حق کدھر چلے گیا؟ یہ بھی تو کرنا ان کا پریشانی ہو جا رہی، پورے 3-4 گھروں کے پانی ہمارے پورے گھر میں ڈوب گیا ہمارا گھر۔ اسی دوران ضلع عادل آباد انچارج و ریاستی وزیر جبلی کرشنا راؤ نے منگل کے روز عادل آباد کا دورہ کرتے ہوئے ضلعی عہدیداروں کے ہمراہ پینگنگ گیسٹ ہاؤس میں جائزہ اجلاس منعقد کیا اور گزشتہ 5 دنوں سے جاری موسلادھار بارش سے ہوئے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا اور صورتحال پر نظر رکھنے اور عوام کی حفاظت کو مد نظر رکھنے عہدیداران کو ہدایت دی۔ بعد ازاں محلہ شانتی نگر کا دورہ کرتے ہوئے بارش سے متاثرہ مکان کا دورہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مالی امداد فراہم کی۔ اسی طرح کھیتوں کا بھی دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس دوران مختلف مسائل کی یکسوئی کے لیے عوام اور سیاسی قائدین نے درخواستیں پیش کی۔ سابق میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے بارش سے متاثرہ علاقوں میں دوبارہ مسائل پیدا نہ ہو ٹھوس اقدامات کے لیے وزیر سے نمائندگی کی۔ یوتھ کانگریس ضلع نائب صدر عرفات خان نے وزیر موصوف کو تہنیت پیش کی۔ سابق صدر مجلس سراج قادری نے بھی نمائندگی کی۔ پانی سے جو ہے لوگوں کو بہت نقصان ہوا، تکلیف ہوا، تھوڑے مکان گر گئے، تالاب جو ہے کٹ ہو گئے، روڈس بھی جو ہے پورے برباد ہو گئے، اور بجلی جو سفید تھا پوسٹ گر گئے، آس پاس جل گئے، یہ تمام چیز ہے۔ اس لیے لوگوں کو مدد کرنے کے واسطے انچارج منسٹر ہونے کے ناطے یہ تمام دیکھ کے اور کلیکٹر کو، ادر آفیشلس کو ڈائریکشنز دے کے پورے ان کے کتنے لوگوں کا کیا کیا نقصان ہوا پورے جو ہے تمام حساب کر کے جو ہے تو گورنمنٹ کو ہمارا منگا لے کے جو ہے ان لوگوں کو مدد کرنے کے واسطے آئے۔ جو کچھ بھی ابھی جو دیکھیے مکان بھی دے رہے، ان لوگ بھی ادھر مکان دے رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ بھی لوگوں کو اتنا جو تکلیف ہوا سب کو جو ہے مدد کرنے کے واسطے آئے، مدد کر رہے ہیں۔ اور سب کو جو ہے آپ کے طرف سے آپ کے تھرو یور چینلز لوگوں کو بھروسہ دے رہا ہوں، کوئی بھی ڈرنے کا ضرورت نہیں ہے، پورے کوشش کر کے ان لوگوں کو مدد کریں۔ حق اطلاعات قانون RTI کے تعلق سے عادل آباد میونسپلٹی کے عہدیداران و عملے میں شعور و آگاہی کی سخت ضرورت پائی جاتی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق درخواست گزاروں کو اپلیکیشن فیس بطور کیش، پوسٹر آرڈر، ڈیمانڈ ڈرافٹ یا چیک کے ذریعے جمع کرنے کا قانونی حق حاصل ہے۔ تاہم عادل آباد میونسپلٹی کے پبلک انفارمیشن آفیسر PIO درخواست دہندگان سے یہ فیس قبول کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہینڈی کیپ ہیلپنگ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی و صدر جناب محمد عمران نے اخباری بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ طرز عمل عوامی مفاد کے خلاف ہے اور قانون RTI کے روح کی منافی ہے۔ انہوں نے ضلع و ریاستی حکام سے مطالبہ کیا کہ میونسپلٹی کے ذمہ داران کو فوری طور پر اس تعلق سے باضابطہ تربیت و رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ عوام کو انصاف مل سکے اور قانون کے مطابق معلومات فراہم کرنے میں رکاوٹ پیش نہ آئے۔ نرمل کلیکٹریٹ میں کلیکٹر اور SP کی صدارت میں گنیش فیسٹیول کے پیش نظر آل پارٹی میٹنگ منعقد ہوئی۔ سابق میونسپل چیئرمین بھینسا محمد جابر احمد کی ہدایت پر MIM ٹاؤن صدر فیض اللہ خان، سابق کونسلر محمد عامر احمد اور فعال رکن قاضی ایوب احمد نے شرکت کی۔ MIM نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھینسا شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پارٹی ہمیشہ پیش رہی ہے اور آئندہ بھی
आला ओहदेदारों के ताउन से ये सिलसिला जारी रहेगा। से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर, मैडम एक्स म्युनिसिपल काउंसलर हूँ सर। मैडम हमारे पास 3-4 एरिया ऐसे जो डार्क रहते हैं मैडम 12-1 बजे तक। इससे पहले 4-5 साल से मैं इस पे नुमाइंदगी करते आ रहा हूँ मैडम। हाँ, 2 साल पहले मैडम 2 साल पहले 4-5 पोल डाले उसके लिए। हमारे पास क्या है, एसपी ऑफिस से हमारे को करंट आता मैडम। कोसा एरिया, मार्केट एरिया है, नई आबादी है, आबादी एरिया है, बारीमाम एरिया है मैडम, और कॉलेज ग्राउंड का एरिया है मैडम। ये 4-5 एरिया हमारे 12-1 बजे तक डार्क रहते हैं मैडम। इसके लिए हम एक सजेशन दिए थे। इससे पहले एससी साहब भी थे, आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन करे। अभी भी नए एससी साहब है, उनके सामने बोलना चाह रहा हूँ आपके मैडम। हमारे पास 1 मीनार मस्जिद से मैडम 4 फीडर आता है वहाँ से, ये 500 मीटर वहाँ वायर डाल दिए मैडम। वो तो वो एसपी ऑफिस से कट कर दे कि इधर मिला दिए तो मैडम हमारे लिए अच्छा रहता मैडम। ये सेपरेट हो जाता हमारे लिए। जो बच्चे, जो नौजवान बच्चे जो 12-1 बजे तक बाहर रहते हैं ना मैडम, वो घरों में रहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर मैडम, ये 4-5 साल से मैं नुमाइंदगी करूँ मैडम। डॉक्टर आमिना अख्तर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी सूबेदारी स्कूल हनमकुंडा की मौलिमा को तालीमी साल 2022-23 के लिए उर्दू ज़बान में इनकी गिरा खद तालीमी व तदरीसी खिदमात के एतराफ़ में तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से बेहतरीन उर्दू उस्ताद अवार्ड अदा किया गया। ये अवार्ड वजीर बराए अखिलियती बहबूद तेलंगाना ए लक्ष्मण कुमार ने पेश किया, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा अखिलियती बहबूद शफीउल्लाह और सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान भी मौजूद थे। तकरीब में डॉक्टर आमिना अख्तर के अहले खाना बशमुल इनके शौहर मोहम्मद अफजल, साहबजादी आयशा, फिरदौस और साहबजादा मोहम्मद अनवर ने भी शिरकत की। हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी के सालाना उर्स शरीफ के ज़िमन में सज्जादे नशीन दरगाह सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने प्रेस मीट में बताया कि उर्स का आगाज़ 21 अगस्त बरोज़ जुमेरात रात 11 बजे बड़े घर से संदल शरीफ जुलूस के साथ होगा, जो रात 1 बजे दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद अज़ा महफिल समा होगी। 22 अगस्त जुमा को बाद नमाज जुमा यूनिटी कॉन्फ्रेंस दयारे अफजल में मुनाक़द होगी और रात 10 बजे सज्जादे नशीन जनाब सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी उर्फ खुसरो पाशा साहब चादरे गुल पेश करेंगे। 23 अगस्त बरोज़े हफ्ता बुरदा शरीफ के मौके पर कुरान ख्वानी, जिक्र और रफ़ाई ज़रबात अंजाम दी जाएंगी। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई है कि ज़ाहिरीन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत की जाए। एक हफ़्ता कबल ही अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के जो 70-80 बाथरूम्स है उसका रिपेयर हो चुका है और अतराफ़ अकनाफ पार्किंग के लिए साफ़ सफाई और डस्टिंग हो चुकी है। और इस साल इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। दरगाह शरीफ की जानिब से करीब 30-35 हज़ार लोगों के खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और जर्मन टेंट्स भी डलाए जा रहे हैं, वाटर प्रूफ टेंटिंग भी डलाई जा रही है ताकि बारिश के दौरान किसी को तकलीफ़ ना आए। ख़ास तौर पर अवामुन्नास से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि बारिशों में देखकर सफ़र करें, एहतियात से सफ़र करें, रात के सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि अल्लाह की वली के पास आप लोग दुआएं लेने आ रहे हैं। उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे लोग ये कहें कि बारिश पे चले गए या बह गए, ऐसे कोई हादसा ना हो, लिहाजा एहतियात कर कर सफ़र करें। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ न कुछ सेमिनार होता है और कई किताबों की रस्म इजराई होती है। इस साल 2 किताबों की रस्म इजराई भी हो रही है और यूनिटी कॉन्फ्रेंस उसके दिन मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसके अंदर सियासी क़ायदीन, मजहबी रहनुमा, ये हिंदू बिरादरी हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, तो वो लोग उसको शिरकत कर रहे हैं। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं औलिया अल्लाह के बारगाहों से कि आवाम में अमन रहे और एक दूसरे में मोहब्बत बरकरार रहे। आज हिंदुस्तान का जो ख़राब माहौल है उसको बेहतर से बेहतर माहौल करने की, हर दरगाह में कोई ना कोई दरगाह है, कोई ना कोई आस्थाना है, खानखा है, वहाँ से आवाम तक ये मैसेज पहुँचे कि हम एकजुट होकर रहें, आपसी नफ़रतें, रंजिशों को दूर करें और एक अच्छा माहौल बनाएं जिससे हमारे स्टेट की और हमारे देश की तरक्की हो सके। कल संदल शरीफ रहेगा। 22 उर्स के दिन जो है यूनिटी कॉन्फ्रेंस दिन में रहेगी, जलसे फैज़ान औलिया रहेगा देर रात
उसमें हज़रत मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब खिताब भी फरमाएंगे। रात देर गए वह अवामी जलसा रहेगा। कॉन्फ्रेंस के बाद वो जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिसमें अहमद नक्शबंदी साहब का खुसूसी खिताब होगा। मौला अली शाहिदुल्लाह नगर के अवाम ने हुकूमत और GHMC हुकाम से अपील की है कि वो इलाके में बरसों से जारी ड्रेनेज ओवरफ्लो के मसले को फौरी हल करें। अवाम का कहना है कि 15 ta 20 बरस से बारिश के दिनों में सड़कों में पानी जमा होने के साथ साथ नालों के उबलने से न सिर्फ बदबू और गंदगी फैल रही है बल्कि डेंगू मलेरिया जैसे खतरनाक अमराज भी फैलने का खदशा है। मुकामी अफराद का कहना है कि मदरसा रियाजुल उलूम और मस्जिद के अतराफ में भी पानी जमा होने से आमदरत मुतासिर हो रही है और तलबा व नमाजियों को दुश्वारी पेश आ रही है। बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसकी वजह से अब हालात मजीद खराब हो रहे हैं। अवाम ने हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ और डिप्टी कमिश्नर मलकाजगिरी जकिया सुल्ताना से फौरी इक़दाम करते हुए इन संगीन मसले को हल करने की पुरजोर अपील की। मौला अली शाहिदुल्लाह नगर मदरसा रियाजुल की गली में ये पानी जमा हुआ है और पीछे तालाब भरा हुआ है, जिसकी वजह से महल्ले के बस्ती के लोगों को और मदरसे के बच्चों को और मस्जिद में आने वाले मुसल्लियों को काफ़ी तकलीफ़ है। पानी मुस्तकिल जमा हुआ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन 20 साल से ये तकलीफ़ हम लोगों को है यहाँ पर, और हर एतबार से हर जगह हम लोग कोशिश कर लिए हैं, लेकिन जैसा काम होना है वैसा काम नहीं हुआ अब तक। इसलिए कमिश्नर मैडम से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा दिलचस्पी लेकर ये पानी जाने का निज़ाम सही अंदाज से कर देंगे तो महल्ले के बस्ती के लोगों को सबको और मस्जिद को और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, मस्जिद के मुसल्लियों को सबको सहूलत होगी। ये हमारी ख़ास रिक्वेस्ट है। उम्मीद के कमिश्नर मैडम पूरी अपनी ख़ास दिलचस्पी से इस गली के सिलसिले में पानी नहीं रुके जैसा पानी जाने के सिलसिले में बेहतरीन कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएं। शहर में बेहंगम और तेज रफ्तार बाइक ड्राइविंग की वजह से हादसात में इजाफा होता जा रहा है। कल रात देर गए पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर भी एक तेज रफ्तार बाइक फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार तीनों नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। इस वाक़े की वजह से रात के वक्त कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हो गई थी। कहा गया है कि एक बाइक पर 3 नौजवान बेगमपेट से बंजराइल जा रहे थे। बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी। तेज रफ्तारी में बाइक फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई और तीनों नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। इस वाक़े में तीनों नौजवानों को मामूली जख्म आए हैं। पुलिस ने इस मामले में ज़ाब्ते की कार्रवाई की। दोमलगुड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 18 किलो खुश्क गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 23 साला कोमल सोमनाथ पवार और 18 साला साहिल महेश महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से ताल्लुक रखते वाले हैं। ये दोनों मशकूक हालत में अंबेडकर कॉलोनी लिबर्टी टी जंक्शन के करीब पकड़े गए। इनके कब्जे से 2 ट्रैवल बैग्स बरामद हुए जिनमें 18 किलो खुश्क गांजा पाया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ये नशावर सामान विजयवाड़ा के एक शख्स बाबू से हासिल करके औरंगाबाद ले जा रहे थे ताकि वहां ज्यादा दामों पर फरोख्त कर सके। बाबू इस वक्त मफरूर है और पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद पूछताछ की जा रही है ताकि मंशियात की सप्लाई चेन को बेनकाब किया जा सके। एक कोमल सोमीनाथ पवार और साहिल महेश सालुम के नाम पे इन दोनों को सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में लिबर्टी जंक्शन के पास जो अंबेडकर कॉलोनी है वहाँ पे एक सूरज स्टोर्स एंड ट्रैवल्स होता है, वहाँ पे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में देखे पूछताछ किया और उनसे उनके पोजीशन में से 18 केजेस ऑफ ड्राई गांजा सीज किया और 2 सेलफोन्स भी सीज किया। टोटल वर्थ 4,50,000। ये लोग औरंगाबाद में लेबर काम करते हैं। वहाँ पे ये 2 कोमल और साहिल विजयवाड़ा के बाबू से ये 18 केजेस प्रोक्योर करके वहाँ से हैदराबाद के वया औरंगाबाद जाके वहाँ पे फिर रीसेल करते हैं ड्राई गांजा को। ये लोग फर्स्ट टाइम अरेस्ट हो रहे हैं और ये इन्फोर्समेंट करने वाला जो SHO श्रीनिवास रेड्डी है और उनके टीम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी एंड साई कुमार एंड अदर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ACP यादगिरी, इन सब लोगों को रिवार्ड के लिए हम CP सर को प्रपोज कर लेंगे। थैंक यू।
मैडम ये गाड़ी कहाँ पे सेल थे यहाँ पे हैदराबाद में किसको सेल कर रहे थे? यहाँ पे सेल नहीं करने के लिए, ये यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाया विजयवाड़ा में प्रोक्योर किए और औरंगाबाद लेके जा रहे हैं वाया ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की। तो हमको ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पर ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में दिखा और पूछताछ की वजह से हमको मालूम हुआ कि ये बैग्स में ड्राई गांजा है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। शहर में गैर जरूरी केबल वायर्स निकालने महकमा बरक़ी की खुसूसी मुहिम। कई मुकामात पर इंटरनेट खिदमात हुई मुतासिर। सारिफीन ने बगैर इत्तला कार्रवाई को करार दिया गैर जिम्मेदाराना। रेवंत रेड्डी की तेलुगु देशम जनसेना वाईएसआर बीआरएस व मजलिस समेत दीगर अपोजिशन से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत की अपील। कहा तेलुगु रियासतों के भाजपा एमपी जमीर की आवाज पर दे वोट। गणेश त्योहार के लिए मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर की हिदायत। तमाम महकमा जात के साथ इजलास। 3 मराहल में इंतजामात तकसीम। साबिक वज़ीर आज़म आंजानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश। सीएम रेवंत रेड्डी मल्लू भट्टी समेत कई कायदीन का खराज। राजीव गांधी को बताया मॉडर्न हिंदुस्तान के बानी। हैदराबाद में सोने की कीमत में कमी। 22 कैरेट सोना 91,800 रुपये फी तोला, जबकि 24 कैरेट 1,02,000 रुपये फी तोला दर्ज। खबरनामा में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।